Assalamu alaikum dear students. Welcome you all in our YouTube channel English for All. As you know, we have started this channel for all candidates or all students who want to improve their communication skills in English and want to improve their grammar skills. As you know, grammar is the basic of the any language. Grammar is key to any language. So if you want to improve your English grammar or communication skills in English, then you have need to learn about English grammar. So in English grammar we had started in our we have I have told you people, I have told you people in my previous lectures about all about to be verbs and to have verbs, and I have given you a detailed introduction of tenses, what are tenses. So I hope you people have understood all those topics and concepts clearly. If you don't have listened all those topics, first give priority to listen them, then you must start from this video. So today's our topic is going to present indefinite tense. One thing more I want to add here, that in my previous lectures I totally used, or I mostly used Urdu language, but I thought that when we are learning English, our medium of communication should be in English. So and I followed this thought, and I will try my best that I'll mostly speak in English. But few people or few students feel difficulty to understand English, but I will try to speak very simple English words that a common man can easily understand. Those words are my lecture. So dears, I'm going to start my topic. What is my topic? My topic is the present indefinite tense. So what is tense? If you recall the concept, if you have listened the my previous video, so we'll realize, or you will feel that what is tense. So tense is derived from a Latin word, and that means tempus, and there are basic three times. What are they times? Present, past and future, and their categories: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So from the very beginning, we are going to start present indefinite tense today. So what is present indefinite tense? This tense is used for those actions which happen in present time. So this is the definition, that this tense is used for those actions which happen in present time. It means in running time. It may be, it includes our daily habits, it includes any universal truth, और मतलब इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं जी, वो क्या क्या शामिल हो जाती हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें शामिल है, हमारी डेली रूटीन मोस्टली, इट फॉलोज, इट इंक्लूड्स आवर डेली रूटीन, व्हाट वी डू इन आवर डेली रूटीन, और इट इंक्लूड्स आवर हैबिट्स एज वेल एज व्हाट आर आवर हैबिट्स, वी रिपीटली डू दैम. सो हम कहेंगे कि वो भी क्या है, हमारे इंक्लूड होंगी किसके अंदर की? वो भी इंक्लूड होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर. सो जैसे कि मैंने डेफिनेशन से आप क्लियर कर दिया. अब एक वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू पीपल, दैट this in this is the basic video. I will say that the present indefinite tense includes or covers 70% of all tenses. अगर आप 100% यानी 12 tenses हैं उसका 100% करें, और उनके से अगर परसेंटेज देना चाहें, तो बाकी टेंसेस जो हैं वो 30% इंपॉर्टेंस के हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो खाली 70% का है. यानी इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, डेफिनेशन भी आ जाएगी. मोस्टली जो कंसेप्ट है, यानी मोस्टली जो यूजेबल टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जाम्पल,
I said, sorry, before example, I want to tell you people that it includes, what it includes, it includes our daily routine, our habits, and any universal truth. इसमें जी ये तीन चार एलिमेंट शामिल होते हैं, यानी कि हमारी डेली रूटीन भी होती है, इसमें हैबिट्स भी होती हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल्स कुछ लिख देता हूँ इन तीनों की डेली रूटीन में. जैसे आई गो टू स्कूल. ओके. हैबिट्स, आई टेक टी 2 times a day. And universal truth, sun sets in the west. इस तरह से हमने क्या करना है, ये सारी चीजें जी, ये एग्जांपल्स थी इसकी. आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कैसे होगा. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज इट कवर्स 70% ऑफ ऑल द टेंसेस. So जी, I go to school, I take tea 2 times a day, sun sets in the west. अच्छा जी, ये क्या है हमारे पास जी, ये डेली रूटीन है हमारी, ये हैबिट्स है हमारी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जी हमारे पास. अच्छा, इसके लिए इस टेंस को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है इसके रूल्स. जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल व्हाट आर दैट दोज रूल्स. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1. We use or we add, use or add s or es with verb when there is a singular subject. Singular subject without I. ठीक है जी, आई को जो है बगैर शामिल किए. पहला रूल क्या है कि हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं एस या ईएस को अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए. अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा कर देते हैं. अगला सवाल हमारे पास ये बनता है कि सर हम एस या ये तो हमें पता लगे ना, एस या ई एस ऐड करते हैं. अगला सवाल ये है कि सर एस कहाँ ऐड करें और ई एस कहाँ ऐड करें. तो उसके लिए रूल नंबर 2 है जी. आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ रूल्स भी मरतब किए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो और आप गलतियां ना करें. तो रूल नंबर 2 जी हमारे पास जो है वो क्या है कि वी एड एस, सॉरी ई एस when verb ends with s, sh, ch, o, c double h etc. जब जी हमारा जो वर्ब है वो एस एच सी एच ओ या सी डबल एच पर एंड हो रहा हो तो हमने क्या करना है, ईएस का इजाफा करना है वर्ब के साथ. लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन ये कंडीशन अप्लाई होगी. फिर हम क्या करेंगे जी, ई एस कहाँ ऐड करेंगे, जब वर्ब जो है वो एस एच सी एच ओ या सी डबल एच या एक्स पर खत्म होता हो तो उन वर्ब्स के साथ मोस्टली हम क्या ऐड करते हैं जी, एस ई एस ऐड करते हैं. रूल नंबर 3 में आपको बता दूं कि रूल नंबर 3 क्या होगा जी. डेफिनेटली हमने ई एस का तो सीख लिया, फिर एस का हमारे पास बचता है तो अदर जितने भी रिमेनिंग वर्ब्स होंगे, ऑल रिमेनिंग वर्ब्स यानी कि जो एंड इन लेटर्स पर एंड नहीं हो रहे होंगे, ऑल
वो सारे ही जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं विल टेक विल टेक एस। उन सब के साथ जी आप क्या जो है ऐड करेंगे, आप एस को ऐड करेंगे। दूसरा हमारे पास रूल नंबर जी 4, क्या सब्जेक्ट के साथ यानी कि इसके साथ जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या हम एस या ईएस का इजाफा कभी नहीं भी कर सकते? जी हाँ, बाज औकात ऐसे होगा कि आप एस और ईएस को ऐड नहीं करेंगे। वो कब आप ऐड नहीं करेंगे? जब when we have used when we have used helping verb of present indefinite does। अच्छा जी, ES और S का इजाफा आप कब नहीं करेंगे? जब आपके पास ऑलरेडी आपने सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डज जो है वो यूज कर लिया हो, तो अब आप जो है यानी कि S और ES का इजाफा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर इधर देखिए, मैंने जुमला एक लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, वो क्या है जी? सन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई सेड सन सेट्स इन द वेस्ट। So I have added s in at the last of the verb because it is ending with t and it is not ending with ch, sh or o, x or c double h. So I have added here s। अब ये t पर खत्म हो रहा है इसलिए मैंने इस पर क्या ऐड किया है? s ऐड किया है। अब देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस का नेगेटिव बना देता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि जी सन डज नॉट set in the west। The sun does not set in the west। अब मैंने क्या किया, जब does not आ गया तो इधर देखें मैंने कोई s या es का इजाफा नहीं किया। अब जब आपके ये भी मैंने आपको बताया, आखिरी जो हमारा रूल है कि अगर हेल्पिंग वर्ब डज ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो गया है तो आपने s और es का एडिशन नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, वो क्या होती है जी? इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है? वो है इसका यानी कि इसका स्ट्रक्चर, बनावट, ये टेंस बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जी फॉर्मेशन के लिहाज से ये जो है टेंस बहुत ही आसान है। फॉर्मेशन सारे टेंसेस की बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को पुट करते हैं, देन हम क्या पुट करते हैं जी? प्लस उसके साथ वर्ब पुट करते हैं, और वर्ब के बाद हम क्या पुट करते हैं जी? ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट कि जो टू बी वर्ब्स में और टू हैव वर्ब्स में सेंटेंस के दो पार्ट होते थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट इन टेंसेस देयर आर थ्री पार्ट्स। वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? डूअर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करने वाला है वो क्या है? सब्जेक्ट है। व्हाट इज वर्ब? एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी काम है वो क्या है? वर्ब है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जिस पर काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो आपने ये याद कर लेना है। ये थी जी इसकी फॉर्मेशन। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जी सीखेंगे, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। अच्छा जी, अब हम जो है इस जो है टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस सीखेंगे कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ। मैंने आपको बताया हुआ है, एक तो मैं ग्रामर साथ साथ आप यानी कि आपकी इम्प्रूव करवाता चलूंगा, देन कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हमने इम्प्रूव करना है साथ साथ। ये भी मैं आपको बताता चलूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स हर टेंस में जो है आपने कैसे इम्प्रूव करने हैं, कैसे उन टेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है। कंट्रैक्शन फॉर्म जी क्या बनती है हमारे पास, अगर मैं बताऊं आपको तो जी डू नॉट की जो कंट्रैक्शन फॉर्म बनती है हमारे पास वो बनती है जी डोंट। और जो डज नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म बनती है हमारे पास वो बनती है जी डजंट। यानी इस कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ आप हम जाएंगे। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट व्हाट आर द प्रोनाउंस जिसके साथ हम जी प्रैक्टिस करते होते हैं प्रोनाउंस और एक नाउन के साथ। वो कौन कौन से कैसे जी हमारे पास वो होते हैं? आई, वी, यू,
they, he, she, it and Ali। हम सब के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते होते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ जी। क्या है जी पहला सेंटेंस? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। वी प्ले गेम। वी प्ले गेम। यू विन अ टॉस। ठीक है जी। दे डू देयर वर्क। ही मिल्क्स द काउ। she washes she washes clothes। Then it rains and Ali does his duty। ये जी कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ। तो क्या होगा जी, पहला हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस है। आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू स्कूल। देन नेक्स्ट वी हैव अ सेंटेंस, वी प्ले गेम, वी डोंट प्ले गेम। डू वी प्ले गेम, डोंट वी प्ले गेम। Next we have you win a toss, you don't win a toss. Do you win a toss? Don't you win a toss? Then they do their work. They don't do their work. Do they do their work? Don't they do their work? Next we have a sentence, he milks the cow. He milks the cow. He doesn't milk the cow. Does he milk the cow? Doesn't he milk the cow? And then she washes clothes. She washes clothes. She doesn't wash clothes. Does she wash clothes? Doesn't she wash clothes? Then it rains. It doesn't rain. Does it rain? Doesn't it rain? Next and the last, Ali does his duty. Ali does his duty. Ali doesn't do his duty. Does Ali do his duty? Doesn't Ali do his duty? अब जैसे मैंने प्रैक्टिस में भी आपको बता दिया कि जब डज आ जाएगा तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, यानी इधर जो वर्ब डू डज इस्तेमाल हुआ है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। तो हम जी डू लगा देंगे उसके साथ, यानी जब हम डज को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये टेंस जो है समझ आ गया होगा। इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू मे कॉन्टेक्ट और यू मे कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। आपको अगर कोई मसला है या आप इसकी मजीद प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हम इसको मजीद कैसे प्रैक्टिस करें। या एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक्सरसाइज भेज देंगे जो आप प्रैक्टिस करें, लिखें और फिर हमें सेंड कर दें, हम आपको चेक करके भी भेज देंगे यानी आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं। हम आपकी इतनी हेल्प आउट कर सकते हैं आपको सिखाने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप वहां को समझ आ रही है वहां से समझ रहे हैं, अगर आपको हमारी समझ आ रही है देन हम आपको ये सर्विसेज भी देंगे आपको सिखाने की खातिर कि हम आपके एक्सरसाइजेस चेक करके भी आपको दिया करेंगे, भेजा भी करेंगे। आप वो कमेंट सेक्शन में जो है पुट कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।